Okay. So topic of today lecture is composition of animal body and plants. Composition of animal body and plants in terms of nutritional, not in other terms. And if we talk about nutritional terms, that is moisture or dry matter, carbohydrate, protein, fat, mineral, vitamin. These are mineral. These are composition of nutritional composition of any living organism. So if you talk about moisture, that is dry matter, you must be remembering moisture. If we talk about moisture, we can correlate with this dry matter. 100 minus moisture is dry matter. So major composition or major contribution of plant body is moisture. And one more thing, this is wide variation in composition. Wide variation in composition means some plants have 75%, some plants have 30%. So depending upon stage, depending upon physiological stage, and there are many factors which affects moisture content of a plant. So this is the most variable composition in case of plants. And again, this is the principal constituent of living plants in any living organism, and you must be aware of functions of moisture. Without moisture or without life is not possible. Again, young plants have more moisture content as compared to mature, one. So as the plant mature, जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा। कार्बोहाइड्रेट की जो कंपोजिशन है या कार्बोहाइड्रेट के जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ते जाएंगे, खास करके स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज एंड ग्लूकोसेलुलोज। विद्या म्यूट करो तुम अपना। सॉरी सर। Okay. So this is just an overview. What is the composition of plant body in terms of nutritional terms? Just you can see, Barsi 90% moisture, poppy 80%, pasture grass 84%. Whereas these are products of plants like wheat grain, it contains only 13 to 15%, groundnut 6%. So there is wide variation. You can see starting from 10 to 90%, there is variation in composition of plant in terms of water. Another is protein, fat, carbohydrate, total as on minerals and vitamins. So these are nutritional composition of plants. This is just an overview just to remember that composition of plants in terms of very wide. Another thing is carbohydrate. If you talk about carbohydrate, carbohydrate is the structural component in plants, whereas in terms of or in case of animal it is protein. So dry matter of plant contains mainly carbohydrate, major proportion of dry matter. This means if a plant contains 100 gram total mass and 30 gram is moisture, then dry matter will be 70% or 70 gram. Out of that 70% and out of that 70 gram, this is the major component. Carbohydrate is the major component of total dry matter composition, as carbohydrate serves as structural as well as reserve material in plant. Like structure component, cellulose, hemicellulose, and reserve material in all terms in endosperm. So carbohydrate is stored in plant body. In seeds, carbohydrate occurs principally as a starch, like corn or maize or any cereal grains. You will find high concentration of high quantity of starch. It is also present in leaves in slight amount, or you can say in less amount. But in case of plant, this is the major component: cellulose, hemicellulose, and lignin. In last class I asked what is lignin. Again, this is polyphenolic compound, and lignin content of plant tissue increases with maturity of plant. And this is the reason rigidity of plant is governed by, or rigidity of plant is modulated, you can say supported by, this is lignin. Lignin binds with cellulose, lignocellulosic bond, lignin binds with hemicellulose, and this provides
rigidity of plant. This is the reason why mature plants are more rigid as compared to less faster, or as compared to newborn, you can say, or budding. So as maturity, as with increase in years or days, there is higher concentration of these cellulose, hemicellulose and lignin, and this is the responsible, these compounds are responsible for rigidity, strength to the plant. This is the reason lignin content of plant increases with the maturity of. Next component is protein. Protein is mostly present in leaves, and this is the reason leaf is known as a storehouse of plants. Particularly, if you are asked that which part of plant is most nutritious for animals, which part of plant is most nutritious, then it is leaf. You must have observed, जब लीफ मिलता है तो एनिमल जो दूसरी चीजों को खाना पसंद नहीं करते हैं, because of this protein content, because of some minerals content, because of some vitamins content. So protein is more majorly concerned in or concentrated in leaf. But in case of and this one, as plant matures, there is a migration of the plant protein from the leaves to the seed, and this is very much special in terms of leguminous plant. जितने भी आप दाल वाले पौधों को जानते हैं, उसमें लेग्यूमिनस सीड जितने भी होते हैं, दिस इज रिच इन प्रोटीन, whereas जितने भी सीरियल्स ग्रेन्स होते हैं, राइस, मक्का, गेहूं, these are rich in carbohydrate. इसी बेसिस पे हम करते हैं ना, लेगुमिनस मींस हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम, बट इन केस ऑफ नॉन लेगुमिनस लाइक जितने भी सीरियल्स ग्रेन्स हैं, पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली के होते हैं, दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ carbohydrate, that is starch, जो अभी हमने बात किया. As the plant matures, migration of the protein from leaf से seed की तरफ जाता है, या यूं कह लीजिए कि ग्रेन की तरफ जाता है, और leguminous plants के seed में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होता है, and this is helpful for germination. Again, young tissue of plants, roots and seeds, especially leguminous, are rich in protein. You must be aware of दाल और जितने भी लेगुमिनस प्लांट्स हैं, वो इसीलिए हम खाते हैं या एनिमल को देते हैं, बिकॉज दिस इज रिच इन प्रोटीन, रिच इन कैल्शियम. अनदर वन इज फैट. फैट इज प्रेजेंट एट हाईएस्ट लेवल इन सीड फॉलोड बाय लीव्स. सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सीड में होगा. और सीड में भी तीन तरह की फैमिली आपने पढ़ी, या यूं कह लो कि जो नॉन लेगुमिनस फैमिली होती है, जैसे मैं एक सिंपल बात करूं, वाइल्ड बियरिंग प्लांट्स लाइक जैसे सरसों या मस्टर्ड कहते हैं. मस्टर्ड सीड कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल, फैट, और इवन जो आप कुछ फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अखरोट, बादाम खाते हैं, दैट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ फैट. सो you must remember differential composition of plants, leaves, stem, fruits, flowers, सबके अलग अलग डिपोजिशन पॉइंट्स होते हैं. फैट ज्यादा कहाँ रहेगा? सबसे ज्यादा सीड में रहेगा, उसके बाद लीव्स में रहता, और सबसे कम ज्यादा स्टेम में रहता. और स्टेम में सबसे ज्यादा क्या रहेगा? सेलुलोज और हेमिसेलुलोज और लिग्नोसेलुलोज रहेगा. While bearing seeds have higher percentage of protein and fat compared to cereals. While bearing seeds like जैसे mustard, कितना भी ब्रेसिकेसी फैमिली आपने पढ़ा होगा, बॉटनी याद होगा, that contains high concentration of while bearing plants. And again here you can just I'm priming you. एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं हम लोग केक. केक दो टर्म है. एक केक जो आप खाते हैं, केक ब्रेड खाते हैं बर्थडे में, दैट इज अनदर केक. यहाँ जो केक बनाते हैं कि ऑयल सीड को, सपोज कीजिए सरसों की खल्ली आपने सुनी हो, इसको हिंदी में आप खल्ली कहते हैं, सरसों की खल्ली कहते हैं. तो क्या करते हैं कि ऑयल बियरिंग जो सीड है, सरसों है, तीसी है या सोयाबीन है, ये तीन तो आप जानते हैं, या मूंगफली है जिसको ग्राउंडनट कहते हैं, तो वहां से क्या करते हैं, ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो कुछ भी रेसिड्यू बच जाता है, उसी को हम केक कह देते हैं, CAKE. Again, keep in mind, while bearing seeds have protein as well as fat. और जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट में भी बहुत तरीके हैं. एक सिंपल सा गांव में सुना होगा आपने, कोल्हू का बैल. कोल्हू क्या होता था, आगे हम लोग फिर बात करेंगे. कोल्हू का मतलब क्या होता था कि जो तेल निकालने का जो एक मैकेनिज्म होता था,
ऑयल प्रेस होता था कि दो मशीन के बीच से, या यूं कह लो कि दो रोलर होते थे, और इस दो रोलर के बीच में अगर आपने किसी सीड को क्रश कर दिया तो क्रशिंग के बाद जो ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता था। फिर दूसरे होते हैं घानी प्रोसेस, हम फिर बात करेंगे, केवल आप याद रखो। फर्स्ट वन इज घानी प्रोसेस, दूसरा कोल्हू प्रोसेस, और तीसरा होता है जो एक सिंपल प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो फैट लाइक सब्सटेंस को, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे पेट्रोलियम ईथर है, इथेनॉल है, एसीटोन है, उसको हम क्या करते हैं, इस तरह के प्लांट को क्रश करके डाल देते हैं, तो जितने भी ऑयल सब्सटेंस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो एक चीज जो आपने सीखा यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज केक। अगर आपसे कोई पूछे कि मस्टर्ड सीड केक या मस्टर्ड ऑयल केक, व्हाट डज दिस मीन? केक मीन्स कि ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड एंड दैट पोर्शन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। कभी कंफ्यूज मत करना। अगर सिंपल हम दो बात कहें आपको कि एक सीड है, तो सीड में क्या ज्यादा होगा? फैट ज्यादा होगा। अगर मस्टर्ड ऑयल के बारे, मस्टर्ड सीड के बारे में करें, सरसों के सीड के बारे में बात करें, लेकिन जब उसमें से हम तेल निकाल लेते हैं, फैट निकाल लेते हैं, ऑयल निकाल लेते हैं, तो जो कुछ भी बचता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंड दैट्स व्हाई केक्स आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन इन केस ऑफ रूमिनेंट, इन केस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि केक जो टर्म है वो क्या है। मस्टर्ड ऑयल केक, एमओसी कहा जाएगा, कभी कभी कहा जाएगा ग्राउंड नट केक, कभी कहा जाएगा सोयाबीन केक। ठीक है, तो केक का मतलब हुआ ऑयल बेयरिंग प्लांट से अगर हमने ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया और जो कुछ भी बच गया, जिसमें हिंदी में सिट्ठी कहते हैं आप, जैसे गन्ने का जूस का वो अलग टर्म है, वो भी बात करेंगे, उसको बगासी कहते हैं। एक चीज ध्यान में रखना। अनदर वन इज मिनरल्स एंड विटामिन। अगेन मिनरल कंटेंट ऑफ प्लांट इज हाईली वेरिएबल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में आपके। लेग्यूम्स आर रिच इन कैल्शियम, पहले भी बात किया, लेग्यूम चाहे वो प्लांट हो चाहे वो सीड हो, दिस इज रिच इन कैल्शियम। और इसलिए कहते हैं कि गाँव में या आपके जो बच्चे होंगे तो कहते हैं कि दूध पियो और दाल खाओ। उसके पीछे दो रीजन है। दोनों के कंपोजिशन को अगर आप देखेंगे कि पोरमेंस कह सकते हैं कि दूध के बदले अगर हम लेग्यूमिनस सीड दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या है कि लेग्यूमिनस सीड अगर है तो वहाँ क्या सबसे ज्यादा चीज होगा? प्रोटीन ज्यादा होगा, जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरत है। And another thing is it is rich in calcium, which is again required for calcification of bone, which is again required for building of your long bones and bone. So this is the quality of legume. Seeds are rich in phosphorus. Again, seeds और seed carbs जो होते हैं, एक टर्म आप यहाँ और सीख लीजिए। राइस का आपने प्रोसेसिंग देखा होगा। राइस के प्रोसेसिंग में, जिसको आप चक्की कहते हैं, आटा मिल पे या जो क्रशिंग करते हैं, तो एंडोस्पर्म है, उसके ऊपर एक्टोस्पर्म है, जो ऊपर का जो कार्प होता है या स्केलेटन का लो, या तो उसको जब निकाल लेते हैं तो वहां पे कुछ चीजें बच जाती है। वहां पे ये जो सीड्स के जो आउटर वाल होते हैं, कार्प होते हैं, वो रिच इन फास्फोरस होता है। एंड दिस इज द रीजन। आपको दो तीन कार्प्स के नाम या यूं कर ले कि जैसे राइस का हस्क सुना होगा, HUS के हस्क, या पॉलिश सुना होगा, ब्रांड सुना होगा, वो टर्म आगे हम बताते जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो फास्फोरस में रिच होती है। और खास करके सीड्स आर रिच इन, कौन से सीड्स? नॉन लेग्यूमिनस सीड्स आर रिच इन फास्फोरस। सीरियल ग्रेन्स आर लो इन कैल्शियम एंड सोडियम। ठीक है, इज रिच इन फास्फोरस एज वेल एज लो इन कैल्शियम, सीरियल ग्रेन। whereas leguminous seeds are rich in calcium. Again this differs widely. अगर वो लेगुमिनस होगा तो कैल्शियम में रिच होगा, नॉन लेगुमिनस होगा तो फास्फोरस में रिच होगा। तो दिस इज डिफरेंस। अनदर वन इज विटामिन्स, बोथ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। दोनों तरह के विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, और विटामिन्स डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद तो होगा ही कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K, whereas water soluble vitamins are vitamin B complex and C. Another one is, मैं आपसे अगर पूछूं anyone कि विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, कोई मुझे बता दे। विद्या कुमारी, अंकित कुमार, मनिका, मैं तीन का नाम देख रहा हूँ, सोनम, क्या बेटा?
जिसमें ये क्या होता है, लेमन हो गया है, जिसमें ज्यादा खट्टा होता है उसमें विटामिन मैंने ए। क्या पूछा है, मैंने क्या पूछा है आपको? मैंने पूछा है विटामिन ए किस में ज्यादा होगा? लेमन में। लेमन से क्या होगा? दूसरे लोग बताएंगे। लेमन या जितने भी citrus fruit रहते सर हैं। विटामिन ए कैरोट में ज्यादा मिलेगा, ग्रीन। और विटामिन सी वही लेमन वगैरह में ले, सबसे ज्यादा ठीक मिलता है, है। पहला चीज तो ये हो गया। और कोई बताना चाहेगा? एक चीज तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो आपने लेमन वाला बोला या और भी जितने ऑरेंज हैं, वो रिच होते हैं विटामिन सी में। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो आप में से किसी ने बताया? कैरेट। किसने बताया? सर मैंने अस्सी। और कोई सर बताना फिश चाहेगा? में भी। हाँ, बता बता। फिश You can on your video while replying my फिश सर। फिश में। और कोई बताना चाहेगा? चलो एक चीज को मैं क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना, बहुत दिनों से कंफ्यूजन में रहे होंगे। नो एनी प्लांट सोर्स कंटेन्स विटामिन ए। प्लांट्स में विटामिन ए नहीं होता है, याद रहेगा। प्लांट्स में, किसी भी प्लांट्स में विटामिन ए नहीं होता है। और एक कंफ्यूजन में लोग रहते हैं कि कैरोट खा लिया तो विटामिन ए मिल गया, गाजर खा लिया तो विटामिन ए मिल गया, या पीला वाला कोई भी चीज खा लिया तो विटामिन ए। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, आपने पढ़ा होगा प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन ए, दैट इज प्रोविटामिन ए, दैट इज बीटा कैरोटीन। ऑल प्लांट कंटेन्स बीटा कैरोटीन, बट बीटा कैरोटीन is not vitamin A। विटामिन ए का जेनेरिक नेम कोई बताएगा? विटामिन ए का जेनेरिक नेम, केमिकल नेम। जैसे विटामिन सी का क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है ना, एस्कॉर्बिक, विटामिन रेटिनॉल। हाँ, रेटिनॉल होता है। सो दिस कंटेन्स बीटा कैरोटीन, नॉट रेटिनॉल, नॉट रेटिनल और नॉट रेटिनोइक एसिड। क्लियर हो गया? तो प्लांट में किसी में विटामिन ए नहीं होता है। हाँ, उसके पास प्रिकर्सर्स होते हैं, प्रोविटामिन ए होता है, जो ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इन प्लांट्स देयर आर वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एज वेल, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं। कई बार आप जैसे दांत में दर्द हुआ तो घर में बताया जाता है कि लौंग का तेल ले लो, या इवन जो फ्रेग्रेंस के लिए होते हैं। तो मेनी एसेंशियल ऑयल्स, volatile oils जो कि प्लांट्स में होते हैं, और उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। Another one is factors affecting chemical composition। अब today I have target to just finish it। और मैं जब आप लॉग आउट कर जाओगे या खत्म हो जाएगा टाइम, जस्ट री लॉग इन। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट। फर्स्ट वन इज सॉइल कंपोजिशन। सॉइल कंपोजिशन में soil dictates the composition of plants because soil is the major source of nutrition और nutrients, खास करके जो नाइट्रोजन है, एक्सेप्ट लेगुमिनस प्लांट्स और जिसमें आपने नोड्यूल्स वगैरह पढ़े होंगे। एंड पार्टिकुलरली मिनरल कंपोजिशन। मिनरल कंपोजिशन इज मेजरली अफेक्टेड बाय कंपोजिशन ऑफ सॉइल। एक नाम सुना होगा आपने, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, बायो इंडिकेटर प्लांट। सबने सुना है? एस्ट्रेगेलस के बारे में सुना होगा, 10+2। एस्ट्रेगेलस किस मिनरल्स को डिनोट करता है कि अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा एस्ट्रेगेलस है तो वो कौन से मिनरल्स के बारे में बात करेगा? बायो इंडिकेटर प्लांट, एनीवन? एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन। दिस इज सेलेनियम, है ना, सेलेनियम, आर्सेनिक, सबके अलग अलग वो इंडिकेटर प्लांट हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वहां उग रहा है। दिस मीन कि दिस सॉइल इज रिच इन पार्टिकुलर मिनरल्स, सबके अलग अलग, उसको कहते हैं बायो इंडिकेटर प्लांट। नेक्स्ट वन इज वैरायटी एंड स्ट्रेन ऑफ प्लांट्स। जेनेटिक मटेरियल अफेक्ट्स द कंपोजिशन ऑफ प्लांट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोजिशन। या इवन आपने अगर ऑयल के बारे में, सॉरी, किसी भी सीड के बारे में सुना होगा, किसी भी वेराइटी के बारे में सुना होगा, मेज, राइस, व्हीट, जितने भी होते हैं, तो सबके अलग अलग कंपोजिशन हो जाते हैं।
जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाते हैं जेनेटिक्स वाले लोग, तो उसके हिसाब से क्या होता है, न्यूट्रिशनल चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती है। सब सुन पा रहे हो या नहीं? हेलो? यस सर, यस सर। तो जेनेटिक मटेरियल जो है क्या करेगा, वैरायटी एंड स्ट्रेन ऑफ प्लांट्स अफेक्ट्स द न्यूट्रिशनल कंपोजिशन। एक टर्म हमने लिखा है गोल्डन राइस, आप में से किसी ने सुना है गोल्डन राइस क्या होता है? यस सर। यस सर। बताओ। सर ये बायोजेनेटिकली मतलब उसको प्रोड्यूस करते हैं बीटा कैरोटीन के मतलब ज्यादा के। ठीक है, दिस इज द चाइना ने प्रोड्यूस किया था, गोल्डन राइस कहते हैं। अब मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे। एक होता है कैनोला मिल, कॉपी किताब तो रखते होगे साथ में। कैनोला, CANOLA, क्या मैंने बताया? CA, यहाँ पे लिख भी पाऊंगा मैं, कैनोला मिल, CANOLA, कैनोला। NOL। कैनोला मिल ढूंढ के मुझे बताना कि व्हाट इज कैनोला मिल, क्योंकि यहाँ से वो जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये जेनेटिक वेरिएशन के हिसाब से कंपोजिशन चेंज होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा जितने भी इवन अगर कोई मैंगो और चाट के बारे में जानता है तो क्या होता है, डिफरेंट, आप आम खाते हो, मालदा अलग होता है और दूसरे दूसरे अलग होते हैं, बॉम्बे या जो भी खाते हो, तो क्या है वो कंपोजिशन आपने चेंज कैसे होता है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी ला ली है। तो किसी में जूसीनेस ज्यादा होगा, किसी में फ्रेग्रेंस ज्यादा होगा, किसी में पल्प ज्यादा होगा, किसी में सीड ज्यादा होगा। दिस इज अगेन डिपेंड्स अपॉन वैरायटी एंड स्ट्रेन ऑफ। देखो अभी आने लगा, 9 मिनट है। अनदर वन इज एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सिंपली अगर कोई डेजर्ट में प्लांट है तो उसमें क्या ज्यादा होगा क्या कम होगा? बट नेचुरल है कि वो डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं, जो आपने मॉडिफिकेशन पढ़े होंगे कि स्पाइन कैसे बदल जाता है, या सिंपली जैसे जैसे टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी चेंज होता है तो प्लांट अपने आप को एडजस्ट करने के लिए न्यूट्रिशनल कंपोजिशन को भी चेंज कराता है। अनदर वन इज कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। एक ही प्लांट है और तुरंत इरिगेशन दिया आपने, रात में इरिगेशन दिया, पानी दिया है, तो बाय मॉर्निंग या इन फ्यू आवर्स मॉइस्चर कंटेंट विल बी एट हायर साइड। या फिर सुबह दोपहर के बारे में बात करोगे तो वहां पे क्या होगा, सनलाइट के कारण इवोपरेशन ज्यादा हो गया तो मॉइस्चर कम होगा। सीड रेट अगर हाई ज्यादा कर दिया, मान लो कि दूरी पे जब सीड को देते हैं या प्लांट देते हैं तो क्या होगा, वो थिकनेस ज्यादा होगा, और जब थिकनेस ज्यादा होगा तो कंपोजिशन चेंज करेगा। और सीड रेट अगर आपने हाई किया तो क्या होगा, वो जो प्लांट्स होंगे वो पतले पतले होंगे, तो उसके न्यूट्रिशनल कंपोजिट चेंज हो जाएंगे। टाइम ऑफ सोइंग के हिसाब से भी चेंज होता है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, नाइट्रोजन आपने ज्यादा दिया, यूरिया ज्यादा दिया, फास्फोरस ज्यादा दिया, तो उसका एक्युमुलेशन प्लांट्स में उसी हिसाब से होगा। नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ ग्रोथ, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एज मैच्योरिटी के हिसाब से फ्रूट फाइबर एंड ड्राई मैटर इंक्रीजेस। फ्रूट फाइबर का मतलब आगे बात करेंगे हम लोग, व्हाट इज फ्रूट फाइबर, व्हाट इज डिफरेंट एक्सट्रैक्ट, बट फ्रूट फाइबर मींस cellulose, hemicellulose and lignin, and this factor or this composition increases as the plant mature. Again dry matter content increases, जैसे जैसे बड से आगे की तरफ बढ़ता जाता है मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है और ड्राई मैटर बढ़ता जाता है। फैट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली एट मैच्योरिटी ऑफ द प्लांट। शुरुआत में जब सीड के बारे में बात करते हैं तो सीड में फैट होता है, और अगेन एज एज प्रोसीड्स fat composition decreases and fat proportion decreases. Now come to the composition of animal body. This is just to have an idea that calf contains or newborn baby contains 74% water, whereas maturity as maturity increases, say fat you can see this is 40% water, 60% water, pig 100. So शुरुआत के दिनों में क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हाई होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कभी कभी आप घर में भी देखा होगा कि जब नया बच्चा जन्म लेता है तो बड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, फुला फुला सा लगता है, बाद में वो सिकुड़ता चला जाता है बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन, ऑलमोस्ट सेम रहता है, आगे बात करेंगे। फैट कंटेंट डिपेंड करेगा कि लीन बॉडी मास है कि फैटी है, खास करके जैसे स्टीयर फैट होगा या पीक का होगा, उसको हम प्रोड्यूस ही कर रहे हैं, उसमें फैट कंटेंट को बढ़ा रहे हैं तो फैट बढ़ता जाएगा। Whereas S means total mineral content remains
कांस्टेंट ऑलमोस्ट, प्रोटीन ऑलमोस्ट 80%। अच्छा, दो टर्म हमने यहाँ लिखा है, वन इज एज सच और फ्रेश मैटर बेसिस, अनदर वन इज वाटर एंड फैट फ्री। एज सच का मतलब हुआ कि उसमें सब कुछ रहेगा, यानी कि मॉइस्चर भी रहेगा, देन इट इज नोन एज सच और फ्रेश मैटर बेसिस। समटाइम्स अनदर टर्म यू विल बी हियरिंग दैट ड्राई मैटर बेसिस। ड्राई मैटर मींस मॉइस्चर को डिलीट करने के बाद जो ड्राई मैटर बचा, जैसे अभी हमने बात किया था कि 100 ग्राम कोई फीड है या एनिमल बॉडी कंपोजिशन है और उसमें से 40 ग्राम जो है वो मॉइस्चर है, तो वो जो 60 ग्राम में क्या क्या है, पहले क्या होगा कि 100 ग्राम में अगर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन कितना हो गया, 5% हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, आप उस तरह से बात नहीं करिए, आप क्या बात करिए कि जो मॉइस्चर को हटा दिया तो अब कितना बचा, 60 ग्राम, और उस 60 ग्राम में अगर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वहां पे 12% हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बताना चाह रहा हूँ। अनदर वन इज वाटर एंड फैट फ्री बेसिस। जब हम प्रोटीन को वाटर भी हटा देते हैं और फैट भी हटा देते हैं तो क्या बचता है, केवल प्रोटीन और एस, चार ही चीज तो है बॉडी में। तो ये कंपोजिशन याद रखना, मैं आगे लिखा हुआ ये 80-20 की रेशियो में होता है ऑलमोस्ट। देखोगे वाटर एंड फैट फ्री बेसिस पे एनिमल बॉडी का कंपोजिशन क्या होता है, 80-20। अगेन ये न्यू बॉर्न में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे चेंज होता है कंपोजिशन, कैसे कैसे चेंज होता है। न्यू बॉर्न में इतना ज्यादा होगा, ठीक है, ये लाल वाला पोर्शन जो है वो कम होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, सॉरी फैट का प्रोपोर्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो दिस इज कंपोजिशन। एक टर्म या एक साइंटिस्ट का नाम पहली बार आपको जो बता रहा हूँ, जैसे आपने लेवोजियर के बारे में किसी ने बताया होगा, फादर ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, दिस इज लेविस एंड गिलबर्ट। फर्स्ट टाइम ही एनालाइज बॉडीज ऑफ और इंटायर कंपोजिशन ऑफ एनिमल बॉडी। तो कई बार पूछा जाएगा कि एनिमल बॉडी कंपोजिशन से जुड़ा हुआ साइंटिस्ट का नाम क्या है, दैट इज लेविस एंड गिलबर्ट। अगेन वाटर एंड फैट आर हाईली वेरिएबल इन एनिमल बॉडी। ठीक है, वाटर एंड फैट जो वो चेंज करता है, चाहे वो एज के हिसाब से हो, चाहे वो मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से हो। अगर फैट फ्री बॉडी, जैसे अभी हमने बात किया था कि फैट अगर हटा दें बॉडी में से तो क्या क्या रहेगा, इसके जो रेशियो होते हैं 19:5:1, या यूं कह लो कि 75% मॉइस्चर होगा, 20% के आसपास प्रोटीन होगा और 5% के आसपास टोटल एस होगा या मिनरल बॉडी कंपोजिशन होगा। अगर मॉइस्चर एंड फैट फ्री जो अभी हमने बात किया, इट मे कंटेन्स 80:20 का रेशियो होगा, यहाँ 80:20 होगा, यहाँ 19:5:1। अगेन दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने बात किया था, मॉइस्चर एंड फैट आर द मोस्ट वेरिएबल फैक्टर और मोस्ट वेरिएबल थिंग्स इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और इन केस ऑफ एनिमल बीइंग। और जब इस दोनों को ही हमने कांस्टेंट कर दिया तो ये जो कंपोजिशन रहेगा प्रोटीन और एस का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अगेन लेवल ऑफ वाटर एंड फैट वेरीज इनवर्सली। अगर लेवल ऑफ वाटर हाई होगा तो फैट कम होगा, लेवल ऑफ वाटर कम होगा तो फैट हाई। वाटर, नथिंग टू टेल अबाउट वाटर। A cattle embryo as maturity increases or as this is inversely proportional, you can say, जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा मॉइस्चर लेवल कम होता जाएगा, एज इन केस ऑफ प्लांट्स। प्रोटीन, this is the storage material or building material in case of animal body or human being. It is the major constituent of dry matter in muscles, soft tissue, liver, heart, kidney, lungs and intestine. Muscle contains nearly 75 to 80% protein. So major activation occurs in muscle in terms of protein. Fat, again fat increases, animal body increases with age. Confuse कर जाते हैं कई बार, that is ब्राउन फैट, या जो अपने जो शुरुआत के जो पैड होते हैं बच्चे के, तो उससे कंफ्यूज कर जाते हैं। बट फैक्ट इज दिस कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है कंपोजिशन वाइज जो है वो चेंज होता है प्रोपोर्शनेटली। हम एब्सोल्यूट टर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे कहेंगे तो हो सकता है कि बच्चों में ज्यादा फैट हो, बट जैसे जैसे कंपोजिशन, अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे, इट इंक्रीजेज विद एज। दिस मींस ओल्ड एज में फैट प्रोपोर्शनेटली हाई होगा एज कंपेयर टू
यंग वन। एक सवाल जो इस बार फाइनल में पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें कंफ्यूज हो गए कि यही सवाल पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन इन बॉडी इज, तो आप लेस देन 1% भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, बट इट शुड नॉट बी हायर। लोगों को समझ में नहीं आया, हमारे बॉडी में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट हैं भी दैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर बॉडी कंपोजिशन में उसका बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस इज लेस देन 1% ऑफ टोटल एनिमल बॉडी। ये हमेशा बनता रहता है और टूटता रहता है, ठीक है। एंड यूजुअली प्रेजेंट, अगर स्टोरेज के बारे में बात करें तो दिस इज ग्लाइकोजन, जो लीवर में स्टोर होता है एज स्टोरेज मटेरियल। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टोटल बॉडी कंपोजिशन का ये 3% होता है, ऑलमोस्ट 3 to 5%। कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ होगा, इसमें बोन एंड टीथ में होता है। कैल्शियम फास्फोरस का अगर रेशियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो दैट इज इन बोन या आपके डेंटाइन में जो होता है। सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म्स इन वेरियस फ्लूइड्स, ठीक है, लेस देन 1%। दिस इज डिफरेंस, ये आप पढ़ लेना। मेजर डिफरेंस क्या है, अगेन परसेंटेज डायमीटर का सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्लांट में होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल इट इज वेरी लेस। रिजर्व्स जो है दिस इज फैट, बट इन केस ऑफ carbohydrate this is starch. Structural component protein and mineral, whereas in case of plant this is cellulose. Source of